چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوان، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیان، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو رستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحمی کی بجاوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ। कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो। तुम मेरे बाप के मुद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा? कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ। नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफका बुला लें अबू इसहाक? नहीं कियान, मुस्लिम लफका आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूं। उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा न खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और निफरैन का सजावार हो। उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उम्मे साबित की जबान के जख्मों का आदी हो चुका हूँ। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूँ ताकि तुम्हारे हाथों अपनी जात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूं। मैं शर्मिंदा हूं कियान। उम्मे साबित के तर्क बर्ताव और तेज जबान से हमेशा तुम्हें डसा है। आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान के मुख्तार से लगाओ के रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की जबान के जख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ औक़ात बहुत सुरूर आवर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। कामिल, यहाँ आओ। हाँ, क्या तुम भी वही कुछ देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं? तुम क्या देख रहे हो कियान? एक हिलता हुआ काला जर्रा। फिर तो ये शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इस बरहूद के मैदान से तो अरबी ऊंट भी जिंदा नहीं जा सकता।
آپ کس اجازت سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی۔ مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے۔ اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے۔ اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، مزہ پھیکا کر گئی۔ خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا۔ یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں۔ شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی تیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بہکا کر رہوں گا۔ ان پر بہت غضبناک ہے شیطان، جن کا ایمان لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا۔ کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا۔ 2 راہبان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برہود ایک جہنم ہے۔ اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی۔ اگر اجازت عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا۔ کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نمک کی وادی کی طرف سے۔ سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے۔ کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟ نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو۔ ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے۔ کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ڈھیروں ڈھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟ جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں۔ شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعاً نبی کے بیٹے کی طرفدار ہیں؟ کیا عرض کروں، طالب تو ہیں، مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا۔ ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نثار کر دوں گا۔
ہاتھ بڑھاؤ ابن عقیل. میں چاہتا ہوں کہ سفیر حسین ابن علی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص بن جاؤں. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. مختار، کوفہ کے بزرگ اور باعزت شیعوں کو باخبر کر دیجئے. مجھے بہت جلد اپنے چچا زاد بھائی حسین کا پیغام ان تک پہنچانا ہوگا. میں مسلم ابن عقیل اپنے چچازاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے اور ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں. اے لوگوں، جو بیعت ڈر، خوف یا زبردستی کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے. آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں. حسین یا یزید. مبارک ہو ابو اسحاق، عشق کی حکومت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. ابھی فیصلہ کرنا جلد بازی ہے کیا؟ کس بات پہ دل میں شک لا رہے ہو ابو اسحاق؟ جانتے ہو میں کیوں ڈر رہا ہوں بن کامل؟ اس قوم کے بزرگان اپنے ماضی کے داغ کو مٹانے کی فکر میں ہیں بنسبت یہ کہ عربی حکومت برپا کریں. سوچو اگر یزید نے کسی دن ایک لشکر بھیج دیا کہ اپنے مخالفین کا قلعہ کما کر دے تو کس کے بھروسے ہم اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ اے کوفہ کے لوگوں، جان لو کہ جب کسی خلیفہ کے لیے بیعت کا ہاتھ بڑھا رہے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنے عہد پر ثابت قدم رہو. اما نے اپنا سامان باندھ لیا ہے اور جانا چاہتی ہیں. جانا چاہتی ہے؟ کہاں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں مرنے جا رہی ہوں جہنم میں، اسفل السافلین میں. میرے خیال سے خالہ جاریہ کے گھر جانا چاہتی ہیں. کہاں ابو اسحاق؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا عرض کروں، میری گائے نے بکری کا بچہ جانا تو اس پر وہ ناراض ہے. شیطان کو اپنے عیال کی جلد میں سے نکال کر بھگانے کے لیے گیا ہے. ابو اسحاق کا صبر اور حوصلہ حیرت انگیز ہے. میں تو اس حد تک برداشت نہیں کر سکتا. میں ابو اسحاق کی جگہ ہوتا تو کب قوم میں ثابت کا سر قلم کر چکا ہوتا. یہ میرے لیے بھی ایک پہیلی ہے. کس طرح ابو اسحاق نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں؟ بے شک وہ ایک زہریلے سانپ کا ڈنگ ہے. پتہ نہیں تم نے چکھا ہے اس کا مزہ یا نہیں. میں نے تو اپنے پیمانے سے زیادہ چکھا ہے. ابو اسحاق کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بڑی بردباری سے ایک بد اخلاق عورت کو برداشت کر رہا ہے. تم ایک عرب کی نگاہ سے دیکھو گے تو اس بات کو سمجھو گے. ایسے عرب بہت کم ملیں گے جو عورت کے سامنے خشوع اور خضوع سے پیش آئیں، وہ بھی ایسی عورت جو کھلم کھلا اپنے شوہر کے عقائد کی مخالف ہو. مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ایک سنجیدہ مرد بن جاؤ گے، مگر تمہارے سفید بالوں نے بھی تمہیں بادشاہ نہیں بنایا. 15 سال تک میں چلتی رہی اور اس غرور کے زخم کی تکلیف سہتی رہی جو مختار نے مجھے دیا تھا. اب تک مختار کا غرور زخمی ہے کیا؟
मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूं। एक गोश्त का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। ज्ञान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा अजर कुर्बत के मुस्तहिक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया हो। जितनी बार ज्ञान ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग ज्ञान जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर? मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? उम्मे साबित और फरार? तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे। वाह हो तुम्हारे बुरे ताले पर औरत, लानत हो तुम्हारे नीच पर। नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन? कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा? कहीं के आखिर तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कबर नहीं पहुंची तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो? आप इस घर से नहीं जा सकती। तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्चे? आप किस बात पर नाराज हैं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाओ या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ। साबित बेटा। जी बाबा। अम्मा से दबान दराजी मत करो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है बाबा। थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह ना होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में ना होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता। तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार। मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक कि जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमां मत करो। तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है
کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں. اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے. والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. فراق سے خدا کی امان. یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں. وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی. اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے. ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے، ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائیں. مسلم لکھ دیجئے. کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. میں نہیں چاہتی آپ کے اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں. عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہ و بالا کیا ہوا ہے. اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں. اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں. سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا من چاہا شوہر نہیں ہے. بابا، یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا. یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا. کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے. رسول اللہ کی قسم بے فائدہ کام کر رہا ہے. وہ اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے. مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے. اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو. عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار. شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے. تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی. میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے بالکل تمہاری طرح. پھر تو ہمارا کام تمام ہے. عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو. تم لوگ حاضر کوائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیر خواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو. کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے.
कूफे के लोग वही लोग हैं जिन्हें हजरत अली ने मर्द जैसे लोग कहा है। ये लोग आदमी जैसे हैं मगर आदमी नहीं हैं। इनकी बातों पर नाज ना करो, इनके वादों पर अपना दिल खुश मत करो, इन पर भरोसा मत करो। यजीद इतना सोना और तलवार और सिपाही रखता है कि फिरौन की तरह वो खुदाई का दावा भी कर सकता है। रब्बुल इज्जत हमें अपनी पनाह में रखे। हुसैन भी सारी बातों से वाकिफ है। अगर उसे कूफियों पर एतमाद होता तो मुस्लिम को इन लोगों के लिए ना भेजता बल्कि खुद आता। मैं ना तो कूफियों की वफादारी पर खुश हूं और ना यजीद की ताकत से डरता हूं। मेरे लिए हुज्जत वही है जो हुसैन इब्न अली फरमाते हैं, यजीद के हाथ बैत करना हराम है। जी नहीं, तुम्हारे पास कोई नसीहत सुनने के लिए समझ बूझ नहीं है मुख्तार। तुम दहर के उस पार, मैं इस पार। तुम अनकरीब सुनोगे कि मैं मस्जिद कूफा के मिंबर पर ऐलान कर दूंगा और तुम लोगों की हिमायत से अपना हाथ उठा लूंगा। आप लोगों के पिछले इक़दाम ने यजीद को मुझसे बदगुमान कर दिया है। तुम अपनी आबरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपनी आबरू की। तुमने मुस्लिम इब्न अकील की मेहमान नवाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है। तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि सियासत ना माँ बाप को जानती है और ना बेटी और दामाद को। मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर तासुब दिखाएगा। एक अंसारी मुजाहिद से बईद है कि यजीद को बरहक समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे एक डरपोक बाप के रिश्ते पर तंज मत करो मुख्तार। यकीनन आप बहुत हसास हो गई हैं उमरा। आज के बाद से कोई बात नहीं करूंगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शिया के घर चले जाते? शिया मर्दों की कहत साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए? अगर बानो हुक्म करें तो अभी जाऊं और मुस्लिम को घर से निकाल दूं। घर वाले जिम्मेदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी तुम मौला अली को जवाब दे दे। मुख्तार, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकिम कूफा है। तुम समझ रहे हो कि उमर साद जैसे लोग जो इस तख्त के लिए अपनी मक्कारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, क्या वो लोग बेकार बैठे रहेंगे? तुम्हारी हाकिम कूफा से रिश्तेदारी का चर्चा शुरू कर देंगे। नौमान चला जाए और उमर साद आ जाए, ये ठीक रहेगा या नौमान रहे और शियों के साथ नरमी से काम ले, ये बेहतर है? उमरा, कूफा में एक मसला यह है कि यहाँ कोई तदबीर करने वाला नहीं है, काम करने वाला सियासतदान नहीं है। यहाँ ये लोग इस कदर सादा लोग हैं कि सिर्फ आंसू बहाना और दुआ करना जानते हैं। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते। उम्मे साबित की क्या खबर है? सुना है कि उसका घर शियों का दारुल हुकूमत हो गया है। उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इम्कान है। वो खूब जानती है कि मुख्तार किस गैर का मजनू है। दरवाजे से कह रही हो ताकि दीवारें भी सुन लें। उमरा दीवार नहीं है बानो, हम सफर मुख्तार हैं। ये अली से इश्क था जिसने मुख्तार को उमरा से जोड़ दिया। अपना ख्याल रखना मुख्तार। तुम किसके साथ आई उमरा? जरबी के साथ। जरबी के साथ? वो है कहाँ? मैंने उसे अब तक देखा नहीं। उसने इजाजत मांगी कि अपनी आका के घर का चक्कर लगा ले। साबित की बहुत याद आ रही थी, ये बहाना किया उसने। मेरे ख्याल से वो मुस्लिम को देखने गया है। तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुख्तार, मगर मैं डरती हूँ कि इसकी खबर हाकिम कूफा तक पहुँच जाए और मामलात मजीद खराब हो जाएं। आज मुझे आग कर दिया है, कल मेरा हशर नशर कर देंगे। आग कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तय कर लिया है कि मेंबर पर जाकर हमसे रिश्तेदारी का इनकार कर दें। शर्मिंदा हूँ उमरा, मुश्किल में आ गई हो तुम।
मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर न कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात ने जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज है। इसके आंसू कोई कमाल नहीं कर सकते। इसकी बेटी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसका दिल उम्मत के उखड़ने पर नहीं चल रहा, इस बात पे चल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर तलवार क्यों नहीं खींच सकता। कि फलाह का दामाद अपने ससुर के सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह। उस फितने से बचो जो एक कौम और रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देता है। मैं नौमान इब्न बशीर वालिए कूफा उन लोगों से जिन्होंने बैत तोड़ दी है कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, चाहे वो बैत तोड़ने वाला मेरे बदन का हिस्सा हो, मेरी बेटी हो या मेरा दामाद, मेरा भाई हो या मेरा बेटा। और वो लोग जिन्होंने मुस्लिम इब्न अकील से बैत की है या बैत करने की नियत रखते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि दांतों से गिरा मत खोलिए। इस तरह की सियासत से तो मुमकिन है कि शिया हजरात अपने यारों को कुर्सी पर बिठा दें। इसकी तो आदत है कि हाथ से फेंकता है और पैरों से खींच लेता है। इतनी बेकार बातों पे तुफ है। इतना आजजाना कलाम किस बात की निशानदेही कर रहा जनाब नौमान? बैत तोड़ने वालों के साथ तो जोरदार आवाज से बात कीजिए। कसम बा खुदा आपका खुतबा कमजोरी और खौफ से भरा हुआ था। अगरचे मेरी बातें तुम जैसे के लिए जिसे रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठना नसीब नहीं हुआ बहुत भारी है खरसमी। मैं खुदा की इताअत में ज़ईफ़ों में से रहूं, ये बहुत बेहतर है कि मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त की मासियत में ताकतवर लोगों में से रहूं। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। ये वो कब्र है जो नौमान के लिए खोदी है मैंने। पिछले तमाम हिसाब चुकता कर दूंगा और ये शख्स इस हुकूमत रह के रखपत रखने वाले का शिकार बन जाएगा। मैं भी तो सुनो क्या लिखा है। पिसर साद अबी वकास की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया को। पिसरे साद अबी वकास? इस साद के बेटे का नाम कितना आसिम ज़दा है ना। नहीं, मैं खुद तुमसे पूछती हूँ उमर, क्या तुम्हारा खुद अपना कोई नाम नहीं है क्या? और फिर कौन सा अबी वकास? तुम्हारा वही ईरान का फातह बाप जो अली और माविया की जंग में किसी का तरफदार नहीं था।
یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا۔ تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے۔ قبول کیا۔ باقی سنو۔ خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کسی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا۔ اس میں سے تھا کچھ کم کرو۔ وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے، یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی۔ کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے۔ تمہیں تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے۔ تم نے معاویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ہر محل کے باشندوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ، یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور اہل شر ہے۔ اگر معاویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو، کوفے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے داماد کا گھر ان شیعوں کا دارالخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیعت کا ہاتھ ابو طراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے۔ وسلام، خط تمام۔ اگر یزید کی چاپلوسی اور نعمان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے۔ عمرہ، تم رو رہی ہو؟ کیا خبر ہے؟ خبر یہاں ہے، پڑھو۔ خط پڑھو، یزید کی طرف سے آیا ہے۔ مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی قدم اٹھائے گا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معزول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسے کوفے کی حکومت کے لیے منسوب کرے گا؟ عمر سعد کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے۔ یقیناً اسی نے آپ کی خبریں لفظ بلفظ یزید تک پہنچائی ہیں۔ مختار، اپنی اور میری اہانت مت کرو۔ عمر سعد انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا۔ آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے، مگر بادانوش اور شراب پرست یزید
कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता, उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को यारान हुसैन की कत्लगाह बना दे, यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता, आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था, वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफ़हम ने बसरा में किया। सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीजी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा बाबा की जान। पुरअमन जगह? मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की, हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ के मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बाइस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा, यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीर हीलागरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना।
अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कहकहे लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने माविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने ज़ियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। बस जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्ने ज़ियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह? ये बात उड़ा दीजिए कि जनाब मुस्लिम की दावत बैत का सिलसिला कूफा में इख्तिताम को पहुंचा और अब कूफा के अतराफ में कबाइल और अरबों से बैत लेने गए हैं। इन खबरों के उड़ाने से इब्ने मरजाना की कुछ फौजों को हम कूफा के बाहर मसरूफ कर देंगे। अच्छी चाल है, तुम खुद इस काम के लिए बेहतरीन बंदे हो। हुआ है बिन हुरैस? ये कैसा शोर है? या अमीर! या अमीर! ये उन कूफा वालों का शोर है जो हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। हुसैन कूफा पहुंच गए हैं, इस वक्त दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। महल का दरवाजा बंद कर दो। किसी भी कीमत पर हुसैन को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होना चाहिए। दूसरा रुख नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुसैन इराक की हुकूमत से बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं थे।
दरवाजा किसके लिए खोला जाए? जैसा कि मालूम है कि हुसैन इब्ने अली आप नकाबपोश सवारों में से कोई एक है, तो मेरी नसीहत कान खोलकर सुन ले कि इराक की हुकूमत उस बदतमीज और बगैर तरबियत के घोड़े की तरह है जो अपने ऊपर सवार होने वाले को गिराकर उसे मार मार कर उसका भूसा बना देता है। आपका मुंह क्यों खुला रह गया? क्या मेरे सींग हैं या दुम? नहीं नहीं, मेरी हैरानगी की वजह अमीर की तदबीर है जो हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं। और मुझे क्या करना चाहिए था? मैं हुसैन के अलावा किसी भी और के लिबास में कूफा आता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आखिर ये कैसी हुकूमत है नोमान? पूरा कूफा हुसैन का तालिब है। मेरे ख्याल से खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया है ना? जो कुछ आपने इन कूफियों से देखा वो एक बचकाना खेल था। अगर आप ताली बजाएं तो सफा फिर पलट जाए। ताज्जुब है, तो वो ताली आपने क्यों नहीं बजाई? मैं अगर ताली बजाने वाला होता तो हाकिम कूफा रहता। मुस्लिम इब्ने अकील के चाहने वालों का शोर शराबा कैसा है? तुम्हारी नजर में क्या वो भी कोई बचकाना खेल है? कूफे में शिया अक़लियत में है। जब तक ये लोग अक़लियत में हैं, खतरनाक नहीं है। ये हुकूमत करने का अंदाज किस पागल मुफक्किर का तज्जिया है? हाँ, मैंने हुकूमत करने का ये तरीका गुजर जाने वाले खलीफा से सीखा है। मुआविया मर चुका है। मर चुका है? हाँ, जैसा कि नजर आ रहा है उसका तर्ज हुकूमत भी उसी के साथ दफन हो चुका है। तुम्हें मुस्लिम बिन अकील के इरादों की खबर थी और खलीफा के कहने के मुताबिक उसको और उसके साथियों को तुमने आजादी का मौका फराहम किया है। इस बेतवज्जुही का नतीजा ये हुआ कि वो मसलत मेरे हाथ से निकल गई है और फिलहाल आप उस पर सवार हैं। खलीफा नौजवान है और हम जैसे बूढ़ों को पसंद नहीं करता, और फिर आप नौजवान लोग खलीफा की ज्यादा मदद कर सकते हैं। हाँ, बहुत खूब बुढ़े सियासतदान। मुस्लिम कहाँ है? मैंने सुना है कि कूफे के अतराफ के कबीलों से बैत तलब करने के लिए कूफा से बाहर निकला है। सुना है इसने। तुम कूफे के हाकिम थे, तुम्हें देखना चाहिए था। इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ और आप देखने पर कुदरत रखते हैं। वाकई? मजाक तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अक्लमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से रिंद लोगों के आगे झुका रहा है और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रश्कावर है। मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नोमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है। जा सकते हैं। आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है इसकी तलाफी में मेरी मदद करो? ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक माकसूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फ करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागियों ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब।
हाथ कट जाएं अबू लहब के, जो रसूल अल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेक उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहाँ जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूँ। बिन उरैस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। यह आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे। क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाँ ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा यह कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूँ बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान। यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुरतों के अमीर हो? था। आज के बाद से आपकी रकात में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन उरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है।
नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नरम दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह कि आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र साद हाथ से ना निकले। सुसर ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार। मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है। ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है। इजा ज़हरतिल बिदअउ फी उम्मती, बिदअत का ज़हूर हो चुका है, एक हौलनाक बिदअत। मैं उस हुसैन इब्न अली के फितने की मंतक नहीं समझ पाया, वो भी उस खलीफा के दौर में जो शायरों और अदीबों का खातिम है और दीन मुस्तफा का जेवर और जीनत है। अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो मुझे आगाह कीजिए कि मैं जाहिल ना मरूं। हुसैन रसूल खुदा का नवासा है, उसकी हुर्मत अपनी जगह। क्या रसूल खुदा से रिश्तेदारी और कराबतदारी किसी बैत शिकनी का जवाज है? अबू लहब भी पैगंबर का चच्चा था, नूह का बेटा भी नबी का बेटा था, मगर ये दोनों किताब खुदा में मग़ज़ूब इलाही और नफरत से मुखातिब किए गए हैं। इराक़ अरब पर हुसैन की हुकूमत यानी उसके बाप अली की हुकूमत का अंदाज। मैं यहां मौजूद बुजुर्गों से पूछता हूं, मीरास हुकूमत अली क्या थी सिवाय रसूल खुदा की उम्मत के टुकड़े होने के? अभी तक कूफा अली के जमाने में खाए हुए जख्मों का दर्द उठा रहा है। अभी तक अली की भाई भाई की जंगों का दाग ताजा है। बिदअतियान कूफा ने दिल जले खलीफा के साथ क्या क्या बुरा सलूक किया। इतना सब्र नहीं किया कि यह नौजवान खलीफा अपने बाप के अजीम शोक से फारिग हो सके। क्या यही है बैत की इज्जत? क्या यही बदला है खिदमात खलीफा मुआविया इब्न अबू सुफियान का? या सैयदी सिब्तुन नबी अहलन व सहलन। तुफ हो इतनी नाकदरी पर।
तुफ हो इतनी वादा खिलाफी पर, तुफ हो इस कदर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने और खयानत पर। थोड़ी सी मोहलत देता हूं ताकि खताकार तौबा कर लें। कसम बाखुदा कूफियों की नाफरमानी की खबर ने अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया को इतना गुस्सा दिलाया है कि उन्होंने हुक्म दिया है कि रोमी तोपों और मंजनीकों से कूफा को जमीन दोज कर दें। मैंने राय की खिलाफ वर्जी की। अमीर को लिखा, या अमीर, कूफा रूम नहीं है। कूफा मलहिदों, मुशरिकों और काफिरों का शहर नहीं है। कूफा खुदा की फौजों का शहर है, महबूस पर फतह करने वालों का शहर है, कसरा पर गालिब होने वालों का शहर है। मगर खलीफा ने एक अजीम लश्कर इराक अरब की तरफ भेजा है जो अनकरीब यहां आने वाला है। मैं इब्न ज़ियाद फातिह खुरासान अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया से वादा कर चुका हूं कि बिदतियों की जड़ें खुश्क कर दूंगा और खुश्क कर दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बसरा में किया। जुबान नसीहत समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मेरी जबान ताजियाने और तलवार की है, सूली की लकड़ी और गुलो जंजीर। बैत तोड़ने वाले चाहे किसी भी कौम कबीले के हों, उनकी जान, माल और नामूस हम पर हलाल हैं। आप लोगों में मौजूद हर कौम के बुजुर्गान बैत तोड़ने वालों के नामो निशान लिखें, क्योंकि अगर कोई बैत तोड़ने वाला पकड़ा गया और उसका नाम उसके कबीले के बड़े ने ना लिखा हो तो वो बड़ा मुजरिम है। खुदा की कसम, उस ज़ईम को उसके घर के सामने सूली पर चढ़ा दूंगा। ए कूफा के मुर्दा और हैरत ज़दा लोगों, अब कौन सी मुसीबत आ गई है कि तुम लोगों के मुंह हैरत से खुले हुए और तुम्हारी जुबानें तुम्हारे मुंह में चिपकी हुई हैं। फिर तुम लोग सुमुम बुकमुन उम्युन के मुस्ताक बन गए हो। क्या ये रवा है कि मरजाना का बेटा खाना खुदा के मिंबर पर रजस खानी करे और कोई उस पर एतराज न करे? क्या खाना खुदा का मिंबर चिंगारने की जगह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूमी तोपों और मंजनीक और शाम के अजीम लश्कर से डर के आप लोगों ने अपना दीन बेच दिया है और अपने मुंह पर मोहर लगा दी है और अपने कानों को दरवाजा बना लिया है। पहली बात तो यह है कि लश्कर शाम एक धोखा है, झूठ है, सच नहीं है। यजीद ने कूफे की तरफ कोई लश्कर भेजा है? बहुत खूब, भेजा हो। किसी इराकी को लश्कर शाम से क्या डरना? इराकी ने तो बारहा शामी से पंजा आजमाई की है और गालिब रहा है। मरजाना के बेटे ने मौला हुसैन को अबू लहब और जनाबे नूह के बेटे से मिला दिया, जो कि दोनों के दोनों कुरान में मखदूब इलाही हैं। मगर उसके मुंह में खाक हो कि सुन्नत पैगंबर और अहादीस नबवी से कोई बात नहीं की। ऐ उलमाए दीन, कारियान कुरान, साहब रसूल जो खुद उनको देख चुके हो और रसूल अल्लाह के अमल और सुखन के ऐनी शाहिद रहे हो, क्या रसूल खुदा ने नहीं फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है कि अगर उसमें दाखिल हो जाओ तो महफूज हो और अगर उसे पीठ दिखाई तो हलाक हो जाओगे। इस शख्स को जानते हो बिन हुरैस? यही फरमाया है। जी हाँ अमीर, एक बेकबा खजूर बेचने वाला है, मीसम तम्मार के नाम से मशहूर है। वाए हो अली के पैर चूमने वाले साथियों में से है। बंदरबाज शराबी को खिलाफत पर तो फिर वो शियों के मोटी गर्दन वाले बड़े लोग किस कब्रिस्तान में मुंह छुपाए फिर रहे हैं जाना के कि एक खजूर बेचने वाला मैदान में उतर आया है?
अबू लहब और जनाब मुझे तवक्को थी कि खान इब्न उर्वा या सुलेमान सुर्द खुजाई मैदान में आता, दोनों के दोनों ना कि ये बेसरुपा खजूर फरोश। उसके हाथ पांव बांधकर दारुल हुकूमत ले आओ। वो लोग जो वही की ताबीर और तफसीर कर सकते हो, आवाम को बिदतों का असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? यजीद की बैत तोड़ने वाले बिदती हैं या वो जिन्होंने यजीद की तरफ बैत का हाथ बढ़ा दिया है? मैं भी मरजाना के बेटे की बात से मुत्तफिक हूँ कि बिदत ज़हूर कर चुकी है। बिदत वो जुआ खेलने वाला है जिसका गमखार शराब का प्याला है। बिदत वो हवसरानी करने वाला है जिसकी इबादत ज़ना है। मत करो। बिदत वो कातिल है जो शेखैन के तरीके की भी परवाह नहीं करता। बंद करो। बिदत वो हवसबाज है जिसकी नमाज सिर्फ हवसरानी है। तमाम मुरीदान अली क्या ऐसी हुलिये के हैं? इसकी धूल मिट्टी साफ करके और मुंह से मक्खी उड़ा के इसे दारुल हुकूमत ले आते। कितने अरसे से तुम्हारे जिस्म को पानी नहीं मिला खजूर फरोश? क्या तुम लोग गुस्ल नहीं करते? पहली बात तो ये कि खाक पाक करने वाली चीजों में से है और तहारत कर सकती है। दूसरी बात ये कि मक्खी और मच्छर इस जहां में मेरा खून चूस लें, ये कहीं बेहतर है बनिस्बत ये कि ये जिस्म कब्र में सांप और बिच्छू की खुराक हो जाए। तीसरी ये कि ये हरामजादे की खासियत होती है कि वो तहकीर और तोहमत के सहारे अपने दुश्मनों को तकलीफ दे, वरना ना तो मैं खाक आलूदा हूँ और ना कोई मक्खी मच्छर मेरे साथ है। बदतमीज! वो बहुत कमजोर है अमीर। ये बुढ़ा वैसे ही मरने के करीब है। इसने अपनी रोटी खा ली है और कपड़े फाड़े हुए हैं। इससे बहस करना सिर्फ आपको तकलीफ देगा। हैफ है कि आप इस जैसे कमजोर से लड़ें। उसे एक दर्दनाक तरीके से मारूंगा। ले जाओ, इसके हलक से जबान खींच लो और एक खजूर के पेड़ की टहनी पर लटका दो ताकि सारी खलकत इसे मुंह के पानी से गुस्ल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुदा की कसम मैं जानता था कि तुम क्या करोगे। मैंने अपनी मौत की कैफियत बहुत पहले अपने मौला अली की जुबान मुबारक से सुनी थी। अली? तुमने अली से क्या सुना है बुड्ढे? मेरी मौत की दास्तान। मौला अली ने फरमाया था, मैसम, तुम एक बदकार औरत के बेटे के हाथों कत्ल किए जाओगे कि तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें उसी दरख्त पर सूली पर चढ़ाएगा जिससे तुम रोजी खाते हो। ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें इसके झूठ का अभी सबूत देता हूं बुड्ढे। तुम्हें ऐसे कत्ल करूंगा कि अली के पेशन गोई के बिल्कुल मुशाबे ना हो। बिन उरैस, जी अमीर। उसे ऐसी कौल कोठड़ी में डाल दो कि हशरातुल अर्ज उसके बदन का गोश्त खा ले। तुम खुद अली की सच्चाई से वाकिफ हो, फिर बेहुदा बातें मत करो। कसम खुदाए ला शरीक, मैंने हरगिज अली से सिवाय हुज्जत और हकीकत के कोई और नहीं सुना। बिन उरैस, इसका मुंह बंद करो और इसे मेरी आंखों से दूर करो। सिपाहियों जल्दी! रुखसत चाहता हूं अमीर। कहाँ इब्ने साद? अमीर से इजाजत तलब करके मैं हुकूमती मकाम मुनसब छोड़कर कोई मुनासिब काम ढूंढने जा रहा हूं। मसलन कौन सा काम? मसलन खेती बाड़ी, सनतकारी या कोई तिजारत। चरवाए का काम भी बुरा नहीं है। जानते हो
ज्यादातर नबी मबूस होने से पहले चरवाहे थे। चरवाहे बन जाओ, शायद तुम भी नबूवत पर मबूस हो जाओ। मैं तो अंबिया के सिलसिले के खत्म होने पर अब तक शक करता हूं। ये लोग अब भी मुर्शिद और मुरसल चाहते हैं जो उनकी हिदायत करे। ऐसा क्या हुआ जो अपना काम बदलने का फैसला कर लिया तुमने? जब एक आम सा बूरिया और टाट पहनने वाला खजूर फरोश एक कुदरतमंद अमीर के दिल में दर्द पैदा करके उसे अपनी मसनद पर लिटा सकता है, तो फिर यह मसनद एक लरसने वाली मसनद है। जब आपको वीरान कर दे तो फिर हम निचले तबके वालों पर तो वाय है। ए पिसर साद, ये तख्त हौलनाक तूफानों से भी नहीं लरस सकता अगर इस पर सवार होने वाला एक चालबाज और मक्कार इंसान हो। तो फिर आप क्यों ठंडे पड़ गए? मैंने चाहा मश्क कर लूं। आओ। आपको रुखसत दी, रुखसत दी। जा सकते हैं, जा सकते हैं आप। ये बोरिया पहनने वाला मौत का मुश्ताक मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि इन जैसों के साथ क्या करना चाहिए। हमें गमो अंधों की मशक करनी होगी ताकि बवक्त जरूरत हम लोग हैरान और परेशान ना रह जाएं। कभी कभार आंसू के एक कतरे से रियाया के दिलों को मुसख्खर किया जा सकता है। ए इब्न साद, हुकूमत रे के लिए तैयार हो? हुकूमत रे? हाँ, हुकूमत रे। मैं जहांबाजी के लिए तैयार हूं, चाहे मुल्क रे की हुकूमत हो, चाहे अमीर की रकाब में नौकरी हो। ईरान को अबू उबैद ने फतह किया और उसकी शोहरत साद अबी वकास को मिल गई। जब साद खड़ा हो गया तो मैंने अपनी तलवार को चूमा और गिलाफ में रख लिया। उस दिन तक जब हम अली इमरान के साथ जंगे जमल के लिए निकले। जंगे जमल में हमने मालिके अश्तर नखई के साथ मिलकर लाल बालों वाले ऊंट के साथ वही काम किया जो अबू उबैद सक़फ़ी ने ईरानी हाथी के साथ किया। दीन सैयदुल मुरसलीन आजकल फिर तुम जैसों की तलवार का मोहताज है शेख। यजीद हराम पीते हुए सैयदों की आबा पहनता है ताकि अहले बैत सादात और उनके मुखलिस साथियों की तौहीन कर सके। यजीद अरब की उसी मारूफ खातून का तुखन है जिसने हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया। हम इलियाची हजरात इर्स व मीरास से खूनी पर यकीन रखते हैं। जिगर ख्वार हिंदा से तो यजीद जैसा बदकार ही आ सकता है। खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। इलियाची कौम का नारा गैरत, शरफ और मर्दानगी है। मुख्तार, अगर जंग का इरादा है तो फिर हमारे साथ भी जल्दी से मामला करो। खुदा तुम्हारा भला करे अबू जाकिर। मैं अपने लिए बैत नहीं मांग रहा, मैं हुसैन इब्न अली के लिए बैत लेने के लिए आया हूँ। हम मौला हुसैन के नौकर हैं। मुझे नहीं लगता कि हुसैन इराकियों के साथ कुशादा रोई से पेश आएंगे, खास तौर पर इतनी बेगैरती के बाद जो उनके वालिद और भाई के हक में की गई। जीत तो मौला हुसैन की ही है जब मुख्तार उनके पास हो। हाथ बढ़ाओ मुख्तार। मोहम्मद का खुदा गवाह है कि ये बैत सिर्फ अबू जाकिर की मौत से ही बातिल हुई। रे पर तसल्लुत हासिल करने के लिए राहें इतनी भी हमवार नहीं हैं। रे कूफा की तरह एक बेसुकून सरजमीन है। नौजवान खलीफा के मुखालफिन रे में सर उठाकर दहशत गर्दी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्द
तकरीबन 10,000 अरब जंगजुओं के लश्कर को लेकर रे की जानिब निकलना होगा। खलीफा ने मेरी राय मांगी, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मुझे खलीफा के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। हुकूमत रे मेरी बहुत पुरानी आरज़ू रही है। आप मुतमईन रहिएगा, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर काम शुरू कर दो। लश्करियों के खर्चे मेरे जिम्मे और लश्कर तैयार करना तुम्हारे जिम्मे। कूफा के तमाम मुत्तहिद और मवाफिक कबीलों से बात करो, उनके तलवारबाजों को जहाद की दावत दो, उनके वाजिबात और सरकारी अदायगियों के बारे में कोई भी बात मत करना। क्या सोच रहे हो उमर? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में। वो एक मुश्किल रकीब है और कबाइल के दरमियान असर नफूज रखता है। डर है हमारे तमाम मंसूबे खराब ना कर दे। मुख्तार तुम्हारा बहनोई है। काश ना होता। मैं उसके सर को उसके तन पर नहीं देखना चाहता। उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी मुख्तार को मार दूं? हुकूमत रह के बदले कैसा रहेगा? मुख्तार को मारना एक दुश्वार काम है। अपने अयाल से डर रहे हो या उसकी बेशर्मी से? अपनी जान के बारे में डर रहा हूँ। मुख्तार के फिदाई बहुत से लोग हैं, बिला शक इसके कातिल का क़िसास लेंगे। तुम उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल सकते हो। मुसिर है कि मुख्तार मारा जाए। मुख्तार के जिंदा रहने से कूफे का हंगामा थमने वाला नहीं, मगर यह जबरदस्ती नहीं कि तुम उसे मारो। अगर मुख्तार के होते हुए तुम लश्कर बना सकते हो तो कोई मसला नहीं। घोड़ा और मैदान सामने है। जाओ देखते हैं क्या करते हो तुम। मुझे पता था कि यजीद के आने से इस दियार के मामलात उलझ कर रह जाएंगे। मुआविया ने 100 साल की जितनी मेहनत की है कि इन विरासतों को इधर से उधर करे, उसे सारे हरबे आते थे। उसने अपने मुंह के निवाले को चबाकर ऐसे यजीद के मुंह में डाल दिया है कि वो बासानी उसे चबा ले। उसका गला दबा देंगे अबल हदीद। कुछ ऐसा करें कि ये लुकमा उसके गले का फंदा बन जाए। किस तरकीब से अबू इसाक, किस तरकीब से? हिजाज से लेकर फारस के खुरासान तक यजीद के कब्जे में है। उन कूफियों की भोंकने की मदद से जो एक गोश्त के टुकड़े से छुप हो जाते हैं। तुम उनके साथ मिलकर चाहते हो कि उस सुल्तान को शिकस्त दो जो आधे आलम खाकी पर खुदाई कर रहा है। इसका मतलब है मैं गलत जगह आ गया हूँ। जिस अबल हदीद को मैं जानता था वो तवक्कल का पहाड़ था और नाउमीदी उसके लिए कुफ्र थी। क्या करूं मगफूर बाप के बेटे? क्या मुक्के मारूं सिल पर? मारो। तुम्हारा मुक्का बट्टे का काम करेगा कि शायद इसी तरह तुम मैदान में उतरो जैसे मौला अली के पास कभी खिदमत में रहा करते थे। मैं भूल नहीं सकता कि तुम किस तरह जंगे सिफ़ैन में शामी सिपाहियों पर हमला करते थे और दुश्मन को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते चले जाते थे। इतने सारे जहाद का अंजाम क्या हुआ? उमरो आस ने कुरान नेज़ों पर उठवा लिए और कूफे की गधों की औलाद लोगों ने मौला अली को काफिर ठहरा दिया और उनकी गर्दन पर तलवार रख दी। मेरी और मेरे कबीले की बैत से काम बनता है तो ये मेरा हाथ और ये मेरी शरग हाजिर है। कूफे वाले आधे राह के साथी हैं मुख्तार। बेकार में फर्जंदे रसूल को इराक बुलाकर दरबदर मत करो तुम लोग। मैं मौला हुसैन की कूफा अहमद से मुवाफिक नहीं था अबल हदीद, मगर मेरी मुखालफत से कुछ नहीं हुआ। मौला हुसैन कूफे का आज़म कर चुके हैं। अगर तुम्हारी गैरत राजी है कि तुम फर्जंदे रसूल का साथ नहीं दो तो मत दो। मैं तुम्हें जहमत नहीं देता। मुझे तुम्हारी निगाहों से शर्म आती है कि मैं तुम्हें कोई मनफी जवाब दूं। खुदा की कसम एक राई के दाने के बराबर भी इन कूफियों से मुझे उम्मीद होती तो सिफ़ैन के दिनों की तरह कफन पहन लेता और मौत से सौदा कर लेता। अफसोस भेड़िए का निवाला यानी मौत के मुंह में खुद को डालना। अपने दिल के हुक्म पर मौला हुसैन की बैत की है अबल हदीद, अक्ल के हुक्म पर नहीं। जी हाँ, भेड़िए करने वाला यानी मौत। कूफे वाले गधे की औलाद हैं, आधे रास्ते के साथी हैं, वादों में बेवफा हैं। मगर तुम्हें क्या? तुम वाकिफ हो कि मौला हुसैन बरहक हैं या नहीं? मैं मौला हुसैन की हक्कानियत का मुनकिर नहीं हूँ अबू इसाक। बहुत खूब। बरोज़े हशर अगर तुमसे पूछा जाए कि हुज्जत हक का साथ क्यों नहीं दिया था तो क्या यही जवाब दोगे जो तुमने मुझे दिया है? न तुम्हें कूफियों की कब्र में सुलाया जाएगा और न तुम्हारे अमल को कूफे वालों के अमल से नापा जाएगा। अब तुम खुद ही जानो। रुको अबू इसाक। बैत लिए बगैर जा रहे हो?
तुम्हारा मशगूल हूँ अबू इसहाक, मशगूल हूँ। तुम सही मौके पर मेरी मदद को पहुंच गए। बहुत बुरी तरह मैं अपने आप में एक जंग में गिरफ्तार था। खुश आमदीद। क्या खबर है? यहां तक जितनी तवक्कुआत थी सब गलत साबित हुई। मरजाना का बेटा बगैर किसी इत्तला के पहुंच गया, वो भी बगैर किसी लश्कर और नकारे बजाने के। उस लिबास में आया कि सब ये समझने लगे जैसे मौला हुसैन है। उसके बाद मिंबर पर जाकर रजस्खानी की और तमाम बेयत तोड़ने वालों को सख्त तरीन शिकंजों की धमकी दी। उसका पहला शिकार मीसम तमार थे। जब मीसम को मारा जा रहा था, सारे कूफे वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इब्न ज़ियाद ने जहालत को कूफियों का डर समझ लिया है। वो बगैर लश्कर के इसलिए आया है ताकि कूफा वालों को उन्हीं के हाथों से फतह करे। सादा लो, दोस्तों से कहो कि खुदा रा कूफे वालों की बातों पर कान न धरें। मीसा में तम्मार का कैद होना इस बात का गवाह है कि कूफे वाले सिर्फ हांडी के चमचे हैं। तुमने क्या किया अबू इसहाक? वही जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ के देहातियों का एक एक बाल करोड़ों बेवफा कूफियों से ज्यादा कदर कीमत रखता है। उम्र साद को हुक्म दिया है कि एक लश्कर तैयार करे रे पर हुकूमत करने के लिए। रे पर या कूफे पर? जाहिरन तो रे का ढंडूरा पीटा जा रहा है, मगर पर्दे के पीछे असल में तुम्हारा गुमान ठीक है। इब्ने मरजाना ने उम्र साद को हुकूमत रे के वसवसे से फरेब दिया है। सरअंजाम हुकूमत रे का ख्वाब व ख्याल इस आदमी को पागल बना देगा। जनाबे मुस्लिम का तो कहीं पता नहीं मिला ना उसे? अभी तक तो नहीं, मगर कुछ देर नहीं लगेगी अबू इसहाक। इब्ने मरजाना जरा सा कदम जमा ले, जनाबे मुस्लिम का भी सुराग लगा लेगा। मुझे लगता है कि इब्ने मरजाना ने इस बात पर यकीन किया हो कि जनाबे मुस्लिम कूफा में नहीं है। कैसे? कैसे का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर ऐसा एहतमाल है कि उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। कियान, अपने दोस्तों और साथियों को यह पैगाम पहुंचा दो कि जनाबे मुस्लिम का बहुत ध्यान रखें। इब्ने मरजाना मक्कारी का खुदा है। ये जो लिबास हुसैन पहनकर कूफा में घुसा है, यह ऐसी चाल थी जो किसी के गुमान में नहीं होगी। मुमकिन है उसके जासूस हमारे अपनों के लिबास में हमारे हल्के में घुस आए। कहो कि जनाबे मुस्लिम की इकामतगाह को तब्दील करते रहें। जनाबे मुस्लिम को किसी भी घर में ज्यादा लंबे अरसे नहीं रहना चाहिए। मुख्तार से कहो कि इराक के उन कबीलों से गाफिल ना रहे जिन्होंने अब तक किसी की बैत नहीं की है। उन लोगों से ऐसे मामला तय कर लो कि वो सब वाकई किसी की तरफदारी न करें और कम से कम हमारे दुश्मनों का साथ न दें। उमर साद को हुक्म मिला है कि अरब के उन्हीं कबीलों में से बेहिसाब सोने की लालच से एक अजीम लश्कर बनाए। इलियाती लोग मुमकिन है दीन के मामले में सुस्त व काहिल हों, मगर इलियाती रस्म व रिवाज के मामले में निहायत मजबूत लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी हुर्मत को इन दिरहम व दिनार के बदले बेच डालें। मुख्तार का एक और पैगाम भी है। हम सुन रहे हैं। अबू इसहाक कुछ परेशान था। ये इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अबू इसहाक का पैगाम क्या है? वो क्यों परेशान था? वो इस बात पर परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्कार लोग शियों के नाम से हमारे हल्के में दाखिल हो जाएं और जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह से बाखबर हो जाएं। उसने ये पैगाम दिया है कि जनाब मुस्लिम बारी बारी घर बदलते रहें और किसी मुअय्यन जगह पर ज्यादा अरसे न रहें। मुख्तार जाती तौर पर एक बुरी सोच रखने वाला इंसान है। उसके गुमान के मुताबिक तो हमें अपनी आंख के दीजे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी उसके ख्याल में हम इतने गए गुजरे हैं कि
کہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے اور معاملہ خراب ہو جانے دیں گے؟ غلط مت سوچو سلیمان، ابو اسحاق ایک دور اندیش شخص ہے، اس کا پیغام کوئی برا نہیں ہے۔ ابن زیاد مکاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا ہے، بعید نہیں ہے کہ اس کے کارندے کسی مکاری سے ہمارے راز سے باخبر ہو جائیں۔ ہانی جان، جناب مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری بیماری ایک اچھا بہانہ ہے، عزیز احباب تمہاری عیادت کو آئیں اور کوئی شک بھی نہ کرے۔ بھائیوں، مختار کا پیغام یہ مطلب رکھتا ہے کہ احتیاط کرنا عقل کی نشانی ہے۔ اب جبکہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم چھپے رہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی اجتناب کریں، اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں کوئی شک یا تردید ہو، ان سے ہمارے بارے میں یا ہمارے معاملات کی روح سے بات نہ کریں۔ بن حریث، جی امیر، کیا ہانی واقعی بیمار ہے یا اس نے بیماری کو ہم سے نہ ملنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے؟ واقعتاً بیمار ہے جناب، میں خود اس سے ملنے گیا تھا، وہ بخار کی سوزش سے جل رہا تھا۔ تعجب ہے۔ بہت خوب، پھر ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اپنے دشمن کی عیادت کرنے جائیں گے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت پیغمبر ہے، اور دشمن کی عیادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ تم نے سنا ہے ابن عقیل، تم نے سنا اس حرام زادے کا پیغام؟ ابن برجان آج رات میری عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ عیادت شیطان کی عیادت ہے۔ وہ آ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو برحق اور قابل توجہ دکھائے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے شر کو ختم کر دیں، کوفے کی راہ مولا حسین کے لیے ہموار کرتے ہیں۔ مطلب کیا کریں شیخ؟ حالانکہ اگر وہ میرے گھر میں مارا گیا تو ساری بات میری گردن پر آ جائے گی کہ مہمان کو عرب نے مار دیا، مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان۔ آپ ابن مرجانہ کو مار دیں گے؟ مگر کیسے شیخ؟ اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں۔ جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔ شک و تردید مت کیجیے جناب مسلم، افسوس ہے کہ اس بیماری نے مجھے ناتواں بنا دیا، ورنہ میں خود ہی اس کی جان لے لیتا۔ اس مکاریوں کی جڑ کا زندہ رہنا یعنی انہی بازیوں کا دوبارہ دہرائے جانا جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کی کمر توڑ دی تھی، یعنی ہماری حکومت حق کو برپا کرنے میں ناکامی۔ خدا کی قسم، ابن مرجانہ کوفہ آیا ہی اسی لیے کہ کوفے کو مقتل حسین بنا دے۔ ابو الفتح اپنے سارے کارنامے آپ کے سامنے بھول گیا اور یہاں سے چلا گیا۔ اس کے دانت اس طرح لرز رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ ٹوٹ نہ جائیں۔
हानी, हानी जान, अगर अभी सोया है तो इसे मत जगाओ। इसने खुद जिद की थी कि जब आप तशरीफ ले आए तो इसे जगा दूं। हानी, हानी उठो, जनाबे अमीर आए हैं। भला दूर रहे शेख, हम दुआ करते हैं कि जल्द जल्द शिफा पा जाए। खुदा के वास्ते मत घबराओ, ए हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूं ठंडे मत पड़ जाओ। पानी, कुछ पानी ला दो मुझे अबा सरत। चुके, शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। ऐ इब्न अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों को